All right. Hello and welcome everybody. We will continue with the second part of this chapter. 12th physics का chapter है thermodynamics. Yesterday we have seen the first part of this chapter. Let us have a brief recap of this chapter. I request you all to please look at the screen so that तो thermodynamics का कल हमने first part देखा था. Let's have a brief recap of this first part. You can refer the screen now. कल हमने देखा था the work done. Please refer the screen. I said please refer the screen. Everybody please refer the screen. कल हमने देखा था the work done. आप लोगों को फॉर्मूले पता होनी चाहिए because today we are going to solve the numericals. Throughout we will be solving the numericals from NCERT at fingertips. तो यहाँ पर work done in any process, work of expansion is given by P delta V or P dV integral from Vi to Vf. That is P times Vf minus Vi. I want everybody to refer the screen now. The first law of thermodynamics is given here. Q is equal to what is that? Delta U plus W. Q is the heat and delta U is the internal energy, change in the internal energy, and this W is the work done. Okay. There are certain sign conventions that we have seen. The sign conventions are heat added to the system. If heat is added to the system, Q is positive. If heat is lost by the system, it is negative. If work of expansion by the system, that is gas expands, then W is equal to P delta V is positive. डेल्टा लिखने के अलग अलग तरीके हैं. डेल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं या डीवी भी लिख सकते हैं. इफ वर्क ऑफ कंप्रेशन, इफ द सिस्टम इज कंप्रेस्ड, द गैस इज कंप्रेस्ड, देन द वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क done on the system, compression on the system, expansion by the system. I hope this is clear. Then we have seen the various types of processes. पहला process देखा था isothermal. Thermal मतलब temperature constant, PV is equal to constant. This is the work done. This is the work done and hence the heat supplied. Because अगर temperature constant है तो delta U is also equal to 0 हो जाता है यहाँ पे. So this is the work done or the heat supplied. nRT ln. ln stands for natural log. Okay. V final upon V initial, or we can say this is V2 upon V1. Okay. Isobaric process, pressure constant, the work done is given by P delta V. ये हमने कल देखा था, derive किया था. Work done is nRTF minus Ti, whereas change in the internal energy, isobaric process है तो it will be NCV delta T. ये तो हमने kinetic theory of gases से formula देखा था, लिखा था. And then if I'll substitute, then I'll get Q is equal to NCP TF minus TI or T2 minus T1. अगला प्रोसेस जो हमने देखा था कल वो था आइसोकोरिक सिस्टम. आइसोकोरिक प्रोसेस हमने देखा था. वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन इज आल्सो कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 and therefore Q is equal to delta V and delta U as you know is NCV delta T. तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे. आगे है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एक्सचेंज इज नॉट देयर एट ऑल. हीट एक्सचेंज नॉट अलाउड एंड दिस इज द इक्वेशन PV raised to gamma is equal to constant. Gamma is the ratio of Cp and Cv. The work done by adiabatic process is given by this 1 upon 1 minus gamma P final minus P initial. इसको कई बार लोग ऐसा भी लिखते हैं P2 V2 minus P1 V1 initial upon 1 minus gamma, या तो फिर हम इसको P1 V1 minus P2 V2 अपॉन gamma minus 1 ऐसा भी कई बार लिखा जाता है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म NR TF minus TI 1 minus gamma. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और एक चीज हम देखने वाले हैं जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करते समय देखेंगे. there is one more important formula that is used many a times. Well, with all these things, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं और ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को मैं भेज दूंगा PDF फॉर्म में. ठीक है, मैंने यहाँ पर कंपाइल करके रखे हुए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडे सेशन. आज का सेशन पार्ट 2 यहाँ से शुरू करेंगे. इट इज स्पेसिफिक. नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग. सो लेट अस बिगिन विद टुडे सेशन. चलिए शुरू करते हैं. अ गीजर, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है. प्लीज पे अटेंशन. A geyser heats water flowing at the rate of 4 liter per minute. What is the rate of flow? 4 liter per minute. Okay. From 30 degrees Celsius to 85 degrees Celsius. 30 degrees Celsius to 85 degrees Celsius. So what is delta T? Change in the temperature. It is 55 degrees Celsius. Yes or no? If the geyser operates
on a gas burner, then the amount of heat used per minute, heat used per minute, heat used Q upon T per minute चाहिए उनको. Is this clear to all? Heat use. Now what is the formula for this? Formula होता है जी, क्योंकि गीजर जो है वो पानी को वहां पर हीट कर रहा है ना, there is water in that. तो यहाँ से सपोज पानी आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, तो इसके अंदर पानी है एंड इट इज 4 लीटर पर मिनट. नाउ वॉट एवर हीट इज गिवन इट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. करेक्ट, एम एस डेल्टा टी. अब यहां पर कौन सी चीज है कि जो हमें पता है और हमें यूज करनी है? इट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. डज एनीबडी नो दिस? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसका वैल्यू हमें पता होना जरूरी है. ये आपको, इसे हम हीट कैपेसिटी भी कहते हैं. ये हम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उस वक्त आपको ये वैल्यू देते थे, लेकिन अब आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? डज एनीबडी रिमेंबर दैट? इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी टेल यू. इट इज 4.2 या 4187. इसका प्रिसाइज वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं, इसका प्रिसाइज वैल्यू है 4187 जूल पर केजी केल्विन. लेकिन इतना प्रिसाइज वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको याद रखेंगे कितना वैल्यू से? 4200 जूल पर केजी केल्विन. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, मैं आपको और एक चीज यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा. यहां पर लीटर दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है, लेकिन वाटर की एक स्पेशलिटी और भी आपको पता होगी शायद. वाटर का डेंसिटी क्या होता है रे? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? करेक्ट, 1000 केजी पर मीटर क्यूब. लेकिन लीटर मतलब कितना होता है जी? आई वॉन्ट द, हाँ हाँ, दोबारा बताइए. 1 मीटर क्यूब इज, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर होता है जी? 1000 लीटर. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो यहां पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब. अब मुझे यहां पर उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 केजी डिवाइडेड बाय 1000 लीटर. इसका मतलब सिंपल है कि इट इज इक्वल टू 1 लीटर पानी का मास कितना होता है? 1 लीटर पानी का मास कितना होता है जी? 1 केजी. Common sense, we use water in our day to day life, so we should know these basic things about the water. Density होता है 1000 kg per meter cube. इस डेंसिटी को मैंने कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया लीटर में. तो अब मुझे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू आई गेट देयर? क्या मिल जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू आई गेट देयर? वंस अगेन आई आस्क यू, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू आई गेट देयर? बताइए प्लीज. 1000 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज 1 kg पर लीटर. मतलब 1 लीटर जो पानी होता है उसका मास कितना होता है? 1 kg. इज दिस क्लियर टू ऑल? इजंट इट? सो 4 लीटर जो दिया है, 4 लीटर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू व्हाट? 4 kg पर मिनट. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. समझ में आ गया? Isn't it? अब देखिए यहां पर इन्होंने पर मिनट दिया है, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को? देखिए Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, आपको पता है, तो इसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगा एंड डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगा, ताकि इसका एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे बताइए मुझे? दिस इज मास. मास इज नथिंग, मास इज मेजर्ड इन व्हाट? मास इज मेजर्ड इन केजी पर. ओके, स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी केल्विन. एंड डेल्टा टी केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा? चलेगा, बिकॉज दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, वही होता है ना. अगर इसको मैं केल्विन में भी या डिग्री सेल्सियस में भी, डिफरेंस जब तक है टेम्परेचर का, रेडिएशन में आपको डायरेक्ट टेम्परेचर लेना पड़ता है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डायरेक्ट टेम्परेचर लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है. अगर मैं डिफरेंस भी ले लूँ तो इसमें 273 ऐड कर दूं, इसमें 273 ऐड कर दूं, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो वही आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इजंट इट? तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर केजी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट इज द यूनिट रिमेनिंग? जूल पर मिनट. तो ये जो हीट होगा वो होगा जूल पर मिनट, और उन्होंने वही पूछा है कि व्हाट इज द हीट पर मिनट. isn't it? So what will be this Q upon T is equal to M upon T कितना है जी? पर मिनट कितना दिया है यहाँ पर? 4 kg into what is the specific heat? It is 4200.
जूल पर केजी केल्विन या केजी डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज 55. तो मेरा काम है अब सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन करना एंड व्हेन वी डू दैट व्हाट वी गेट देयर दिस विल बिकम 4 to the 8 and 4 4 the 16 into 55 into 10 raised to 2. 168 को 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. विदाउट कैलसी विल ट्राई टू सॉल्व. 8 पंचे 40, 4 7 पंचे 30, 4 34, 3 7 सानी 3 8 840. ओके हाँ मराठी 0.49240 into 10 raised to 2 और इन शॉर्ट दिस इज 9.24 into 10 raised to 5 जूल पर मिनट ऑलरेडी ले लिया है उन्होंने तो इसलिए मैं आंसर में नहीं लिखूंगा पर मिनट. सो व्हाट इज आंसर हियर? द आंसर इज ए. ए इज द आंसर ना 10 raised to 5 वाला आंसर होगा. सो ए इज द आंसर देयर. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस ओके? एनी डाउट्स? चलिए अगला क्वेश्चन. ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है जी यहाँ पे. अब यहाँ पे ये जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया the question which I solved here, can you tell me what are the things जो आपको नहीं पता या पता है लेकिन आपको दिया नहीं है. एक है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. इसके लिए मैंने उसको रेड कलर में और ये पिंक कलर में लिखा है that you should know what is the density and 1 liter is equivalent to 1 kg for water. ओके डेंसिटी ऑफ वाटर अगर kg पर मीटर क्यूब में ऐसा लिखेंगे तो ऐसा होगा. अगर ग्राम पर सीसी में होगा तो वही क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. ये सीजीएस यूनिट में डेंसिटी है, एसआई यूनिट में डेंसिटी है और लीटर के यूनिट्स में डेंसिटी है. ओके सो दीज थिंग्स यू शुड नो एंड दिस बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दिस क्वेश्चन बिकम्स अ स्टार क्वेश्चन. डज इट और इट डजंट? यू टेल मी. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूला है. सॉरी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे जी. a gas of molecular weight m specific heat capacity at constant pressure is. हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं. व्हाट इज द मेयर्स रिलेशन? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और दूसरा है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गैमा. सही है कि नहीं है? मुझे यहाँ पर इन्होंने Cp पूछा है. दे वांट अस टू फाइंड आउट व्हाट इज Cp. दे वांट अस टू फाइंड आउट व्हाट इज Cp. So if I substitute what is Cp is equal to actually Cp is equal to gamma times Cv. Let me substitute here. This will become, please pay attention, please see the board. Cp minus Cv के जगह पर हम so what will be Cv is equal to यहाँ पे C. एक सेकेंड ना मैं यहाँ पर Cv के लिए सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. होल्ड ऑन. Cp के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बनेगा gamma times Cv minus Cv is equal to R. सही है कि नहीं है? टेक Cv कॉमन so it will be minus 1 is equal to R. Therefore what is Cv is equal to R upon gamma minus 1. Now this Cv I will substitute here. Therefore what is this Cp is equal to? It will be gamma into R upon gamma minus 1 and I think that's the answer. So it is just solving the two equations and we get the answer. C is the answer here. This is okay. A molecular weight constant pressure gamma into R molar specific heat. अब यहां पे apparently this seems to be the answer. Apparently this seems to be the answer. ये आंसर होगा. कब होगा? When this Cp is molar specific heat. Molar specific heat. तो इसके लिए ये आंसर से molar specific heat at constant pressure. At constant pressure. And this is molar specific heat at constant volume. Isn't it? इन्होंने क्वेश्चन जो दिया है उस हिसाब से ये करेक्ट आंसर है. ठीक है लेकिन अगर वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो कि पर केजी होता है ना वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हेलो इट इज अ स्मॉल Cp
एंड स्मॉल सी वी। इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है जो हमने देखा था ऑलरेडी। कनेक्शन अगर आपको मैं बता दूं, द कनेक्शन देयर इज कैपिटल सी पी इज इक्वल टू एम टाइम्स स्मॉल सी पी, यस और नो, एंड कैपिटल सी वी इज इक्वल टू एम टाइम्स स्मॉल सी वी। समझ में आ गई बात, इजंट इट? तो ये जो फॉर्मूले हैं, इसमें अगर मुझे सीपी के लिए उन्होंने मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए पूछा तो ये सही आंसर है, बट इफ दे आस्क इट फॉर द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट देन हाउ इज दिस टू बी चेंज्ड? I know that capital CP is equal to m times small cp is equal to gamma r upon gamma minus 1, and therefore what will be small cp is equal to gamma r upon क्या हो जाएगा जी, m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा m times gamma minus 1, isn't it? Is this clear? So this will be the expression for principal specific heat. What is the difference in the principal specific heat and molar specific heat? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये जो कैपिटल सीपी होता है इसका यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन, समझे क्या? एंड ये जो होता है इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल केल्विन। व्हाट इज दिस? दिस इज जूल पर ग्राम केल्विन, और ये होता है मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। मोलर मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है ना। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम ग्राम गेट्स कैंसिल, केजी पर मोल होता है या ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम, सो इट विल बी जूल पर मोल केल्विन। सो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो होता है इट इज ऑन द मास बेसिस, इट इज ऑन द मास बेसिस। गैसेस को मास के ऊपर भी मेजर किया जा सकता है या मोल के ऊपर भी मेजर किया जा सकता है, पता है ना आपको? आपका जो कुकिंग गैस होता है उसका वेट जो होता है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी, केजी। 18 किलो का सिलेंडर, 20 किलो का सिलेंडर होता है ना वो आपका। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इजंट इट? या फिर गैस को दूसरा मेजर करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ मोल, इजंट इट? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। हैव आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर? हैव यू, डू यू रिमेंबर स्लाइटली? आपको याद है? ये मैंने बताया है आपको, मैं दिखा सकता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, आपको ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूले जो है वो आपके लर्न होने चाहिए, तभी आपको ये फिर छोटी छोटी बातें आप भूल गए हो, मुझे बार बार वही दोहराना पड़ रहा है और फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है। सो इट इज बेटर दैट यू शुड डू द फॉर्मूले ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला भी होना चाहिए आपका प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। तो अगर ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए वो पूछते, इफ दे आस्क इट, यहां पर उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए ये आंसर होता, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए तुम्हारा ये वाला आंसर होता। इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली मेंशन करना चाहिए, यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए, बट उन्होंने ये आंसर दिया है। सो आई मेड द थिंग्स वेरी क्लियर देयर कि इफ दे टॉक अबाउट द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिस विल बी द आंसर, मोलर स्पेसिफिक हीट दिस विल बी द आंसर। लेट अस प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है यहाँ पर? जैसे क्वेश्चन नंबर 14, चलिए शुरू करते हैं। Question number 14, NCERT at fingertips, chapter is thermodynamics. An ideal gas having molar specific heat at constant pressure, at constant volume is 3 by 2 R. It is molar specific heat. Molar मतलब capital C होता है जी, बराबर है ना? Molar मतलब, so it will be CV is equal to 3 upon 2 R. The molar specific capacities at constant pressure is, तो इसका CP कितना होगा? What is the formula? They are asking what is Cp minus Cv is equal to R. Therefore, Cp is equal to Cv plus R, 3 by 2 R plus R, and that is equal to 5 by 2 R. और ये बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस वो HSC में पूछते हैं MCQs के लिए। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसका रेडी हो गया ना जेरोक्सेस? टुडे यू आर गोइंग टू गेट ना? टुडे यू सेड ऑन सैटरडे। चलिए, सो व्हाट इज द आंसर हियर? 5 by 2 R. B is the answer here. अच्छा, इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मैं क्लिष्ट बना देता हूं। Also find adiabatic index. Find adiabatic index.
कैन एनीबडी आंसर फॉर दिस? अडायाबैटिक इंडेक्स क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ याद दो। हाँ, अडायाबैटिक इंडेक्स क्या होता है वो बताइए पहले मुझे। व्हाट इज अडायाबैटिक इंडेक्स? चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ये स्टार क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको अडायाबैटिक इंडेक्स का वैल्यू पता नहीं है क्या होता है। अडायाबैटिक इंडेक्स इज नथिंग बट गामा। ये आपको पता होना जरूरी है। गामा, gamma is called as adiabatic index, and that is equal to Cp upon Cv, and that is equal to 5 by 2 R divided by 3 by 2 R, and the answer will become 5 by 3. तो अगर आपको ये पता नहीं है कि adiabatic index क्या है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता है। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन आपको पूछना है मुझे बिफोर आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ये जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, व्हाट डू वी कॉल दिस एज? दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। वेरी गुड। अच्छा, इस रिलेशन में, मेयर्स रिलेशन, इसमें R क्या होता है जी? एनीबडी नोज R का वैल्यू? करेक्ट, 8.31 जूल पर केजी केल्विन। सही है ना? और मोल केल्विन, व्हाटएवर, मोल केल्विन होगा। अगर ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है तो ये केजी होगा, और अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट है तो यहाँ पर केजी के जगह पर क्या होगा? मोल केल्विन होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, ये सीपी और सीवी हर गैस का डिफरेंट होता है, लेकिन हर गैस इसको सेटिस्फाई करता है। दिस रिलेशन सीपी एंड सीवी इज डिफरेंट फॉर ईच गैस। वो मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, इसके ऊपर। लेकिन कोई भी गैस ले लो आप उठा के, एवरी गैस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दिस इज फॉर एवरी गैस। इज दिस क्लियर टू ऑल? फॉर एवरी गैस। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर नाइट्रोजन Cp minus Cv is equal to x. For argon Cp minus Cv is equal to y. The relation between x and y is क्या? Absolutely correct, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया दिस इज वैलिड फॉर एवरी गैस। अंडरस्टूड? ओके। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप ये सोच में पड़ जाते क्या है क्या है, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन बाय द वे हमने किया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। पहला मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप बताइए फॉर्मूला के साथ आप डू यू नो दिस फॉर्मूला? Cv ऑफ द मिक्सचर, 2 moles of oxygen, number of moles 2, is mixed with 8 moles of helium N2 8. Effective specific heat of the mixture at constant volume. They want Cv of the mixture. Now Cv of the mixture is given by the formula. Let me write the formula here. It will be N1C1 N1CV1 plus N2CV2 upon N1 plus N2, because they are mixed by volume. Is this okay? Is that clear? So what it will be? Now oxygen is a diatomic gas. डायटॉमिक गैस का Cv का वैल्यू कितना होता है? एंड हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस। फटाफट बता दीजिएगा। हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो आपको ये पता होना जरूरी है यहाँ पर, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो मोनोएटॉमिक गैस, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 by 2 R. So Cv for monoatomic gas is 3 by 2 R. पॉलीएटॉमिक गैस, यहाँ पर वाइब्रेशन को हम निग्लेक्ट करेंगे। यस, एक मिनट, पॉलीएटॉमिक गैस वाइब्रेशन निग्लेक्ट करेंगे जनरली कैलकुलेशंस में। सो Cv फॉर डायटॉमिक गैस इज 5 by 2 R. चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो N1 इज 2 into 5 by 2 R plus N2 is 8 into 3 by 2 R divided by 8 plus 2 10. So this will become 2 4 4 3 are 12 plus 5 17 upon 10 R. So is that 1.7 R? Any doubts about that? C is the answer there. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन I will suggest you all to refer. This is the same question. Kinetic theory of gases, page number 300.
एंड क्वेश्चन नंबर 56 चेक कीजिएगा, सेम है क्या? सेम है क्या? कैसे क्या रे आ गया? अब चलो सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है यहाँ पे? मैंने सॉल्व किया था उस टाइम पे भी, मैंने एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, पता है क्या फॉर्मूला दिया था? चलिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस है जी, मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T0 expands slowly, it is expanding slowly, okay. So according to the law, P upon V is equal to constant. If the final temperature is 2T0, the heat supplied to the gas is, what is the heat supplied? अब इसमें स्लो प्रोसेस जो होता है, स्लो प्रोसेस जो होता है, याद रखिए यहाँ पर हमेशा स्लो प्रोसेस जो होता है वो हमेशा, एक सेकेंड ना, दिस इज 17A मोनोएटॉमिक गैस दिया है ना, नहीं तो मैं क्या, दिस इज एक फॉर्मूला मैं आपको स्पेसिफिक हीट के लिए बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला दिया था उस टाइम पे मैंने? R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पर PV रेस टू x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, बिकॉज दिस इज P अपॉन V, सो PV रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, isn't it? This is it. So in this case if I'll use this formula, ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू होता है 3/2R, CP का वैल्यू होता है 5/2R और गामा का वैल्यू होता है CP अपॉन CV which happens to be 5/3. I hope you get that. Yes or no? तो लेट मी सब्स्टिट्यूट गामा का वैल्यू, लेट मी सब्स्टिट्यूट, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 हियर, तो यहाँ पर मैं गामा का वैल्यू और x का वैल्यू भी अगर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस C? The specific heat capacity is given by C is equal to, I'll take this R common, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बिकम R इनसाइड द ब्रैकेट 5/3 माइनस 1 इज 2/3, 2/3 ऊपर जाके बनेगा 3/2, बराबर है क्या? 3/2 plus 1/2 and that will be equal to 4/2, that is 2R. So the specific heat here is given by 1/2. Now we say what is the heat supplied? Heat supplied is delta Q. Delta Q is equal to N, because ये जो है इसमें PV is equal to RT, तो it will be delta Q is equal to NC delta T, ये होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट इसके लिए मैंने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा हियर 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज 1 हियर, सो आई विल से 1 मोल, C का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 2R एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस। पहला वाला टेम्परेचर T0 है, बाद में है वो 2T0, सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर हियर? इट इज 2T0 minus 20, that is T0. So what will be the answer here? 2RT0. ये वही क्वेश्चन हमने वहां पर भी ऐसे ही सॉल्व किया था, बट दिस इज डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ स्टार प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये स्टार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये एक नया वाला फॉर्मूला जो हमने उस टाइम पे भी देखा था, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था। यस और नो? यस और नो? हेलो? तो ये KTG का वही प्रॉब्लम है, मैंने दोबारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये नहीं बोला कि नहीं नहीं वो सेम है, चलिए कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? एन अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड to 4 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen. So mass of nitrogen is given here. This is the mass of the nitrogen. Nitrogen at room temperature to rise its temperature by 50 degree Celsius. मतलब delta T is equal to 50 degree Celsius. Do you understand that? Rise its temperature by 50 degree Celsius at constant pressure is
So it is Cp that we have to use. The molecular mass of nitrogen, that is capital M, is equal to 28 and R का वैल्यू है 8.3 जूल पर मोल केल्विन. जो 8.3 आप बोलते हो वो मोल वाला होता है, याद रखिए. ठीक है, कई बार देते हैं, कई बार नहीं भी देते ये. ओके, चलिएगा. let us calculate now. Now this is a nitrogen. तो नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस ना, डायटोमिक गैस. डायटोमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू क्या होता है? देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं ना, नो वाइब्रेशन, सो दिस इज 5/2r. तो Cp का वैल्यू क्या होगा जी उसके लिए? 7/2r. यस और नो? हेलो, बराबर है क्या? ओके, सो वी नो Cp का वैल्यू, वी नो द मास. तो अब मुझे यहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. डेल्टा क्यू is equal to, this is taking place at constant pressure, so it will be m cp delta t. ऐसा करना चाहिए. now let us check the validity of this equation. validity of this equation. तो यहां पर मास ठीक है, this mass is measured in kg, बराबर है क्या? यहां पर उन्होंने दिया है, लेकिन cp का वैल्यू जो अपने को मिलेगा यहां से, cp का वैल्यू होगा 7/2 into r and r is 8.3, isn't it? So Cp का वैल्यू मुझे मोल में मिलेगा जी, मोल में. तो अब ये जो मास ऑफ है, दिस मास आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द नंबर ऑफ मोल्स. कैसे कर सकता हूं उसको मैं? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डू आई डू दैट? जूल पर मोल केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्योंकि यहां पर m के जगह पर मुझे एक्चुअली इसको n लिखना पड़ेगा. why n? why n? can you please tell me? because this is the mass which is measured in kg. लेकिन यहां पर जो मुझे उन्होंने स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो दिया है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू मैं कैलकुलेट जो करूंगा 7/2r एंड r इज इन मोल, तो मुझे इस मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं फिर ये. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर है क्या? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना बन जाएगा? दिस मास इज दिस मच ऑफ केजी ना. और ये जो मास है, अब देखिए, दिस मास हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. हाँ, प्लीज रिमेंबर, मोलर थियरी के लिए मुझे मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल होता है ना इसका. तो आई हैव टू कन्वर्ट. ये जो मास दिया है उन्होंने केजी में दिया है. व्हाट इज दिस मास? इट इज 4 इंटू 10⁻⁻2 केजी. तो मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, -2 केजी. नाउ हाउ डू आई कन्वर्ट फ्रॉम केजी टू ग्राम? इट इज 4 इंटू 10⁻2 इंटू 10 केजी. 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम. समझ में आ गया क्या? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, तो दिस विल बी नथिंग बट 440, 10⁻2 प्लस 3 इट विल बिकम 0, तो 40 ग्राम. इस तरह से मुझे यहां पर जब मैं उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा, तो दैट विल बिकम 40/28. इज दिस क्लियर टू ऑल? बिकॉज दिस m इज 28. लेकिन याद रखिए, मोलर मास जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है ग्राम पर मोल. सो आई हैव टू टेक दिस मास इन ग्राम नेसेसरीली. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? So let me just substitute here. Now this is m upon m Cp times delta T. ऐसा यूनिट चेक करते जाइए, आपको सब पता चल जाएगा. So m is, this is 40/28 into Cp का वैल्यू आ जाता है 7/2 into R का वैल्यू है 8.3. ये हो गया तुम्हारा Cp, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स. समझ में आ गई बात? एंड डेल्टा T, नाउ व्हाट इज द डेल्टा T? टेम्परेचर डिफरेंस इज 50 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए, इन्होंने ये केल्विन में दिया है और ये डिफरेंस है, इसके लिए चलेगा. समझ में आ गई बात? डिफरेंस इन केल्विन एंड डिफरेंस इन सेल्सियस इज सेम ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, तो वेन एवर इट इज अ डिफरेंस, तो आप लोग सेल्सियस या केल्विन में ले सकते हैं. लेकिन अगर PV इज इक्वल टू nRT लिख रहे हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख रहे हो वहां पे, तो उसको केल्विन में लेना पड़ेगा. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए शुरू करते हैं. दिस विल बिकम 7 4 and 4 10, isn't it? And this is 2 25. तो इट इज नथिंग बट 8.3 नहीं, इट विल बी 83 into 25, क्योंकि
So this will become 75 7 25 200 207 2075 joule. Well, this will be the answer, 2075 joule, or in other words I can say it is 2.075 kilojoule. 2.075 kilojoule, which is the nearest answer. A is the answer there. I hope this is clear. मुझे पता नहीं ये सिंपल था या स्टार था, आप लोग डिसाइड कीजिएगा. I'll switch over to the next question. Can you please tell me, this is a half star? Okay, half star, star, half star. चलिए. The precautionary measures, mass is to be converted into gram. बाकी इन्होंने सी नाइट्रोजन बोला है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम सीवी सीपी इससे कैलकुलेट करके करना पड़ेगा. तो इट्स कॉल्स फॉर द हाफ स्टार. इज दिस ओके? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 19. बाय द वे दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ स्टार और हाफ स्टार, व्हाटएवर. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है. A sample of ideal gas gamma is equal to 1.4 is heated at constant pressure Cp. If 100 joule of heat is supplied to the gas, the work done by the gas is Q is equal to 100 joule. This heat is supplied to the gas. बराबर है क्या? Whatever heat is supplied, now this Q is actually equal to gas है, तो I will say it is equal to NCP delta T. Can I say so? At constant pressure है ना, इसमें से Q मुझे पता है. An ideal gas, gamma का वैल्यू दिया है, work done by the gas is okay. And this is for Q, huh? And what is the internal energy? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में देखा था, इंटरनल एनर्जी. जब भी किसी गैस को हीट किया जाता है तो वो पहले खुद का इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, एंड दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी. एनसीवी डेल्टा टी, अंडरस्टूड? अगर मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर ये जो फॉर्मूले देखे थे, इस फॉर्मूले के अंदर भी मैंने आपको ये याद दिलाया था, इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एनसीवी डेल्टा टी, ऑलवेज. इधर भी लिखा था, बराबर है क्या? वही चीज मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ. सो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज एनसीवी डेल्टा टी. ये भाई फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूले की तरह इसको याद रखना पड़ेगा. I'll put it in the red box. Isn't it? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यहां पर हीट सप्लाइड दिया है, यहां पर हीट सप्लाइड दिया है, Cp Cv ये सब दिया है. एंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Q is equal to delta U plus W. Correct? So can I transfer delta U on this side? So what I get there? W is equal to Q minus delta U. Can I say so? What is Q? Q is NCP delta T minus क्या होगा यहाँ पे? NCV delta T. समझ में आ गई बात? Isn't it? This is W. So can I take NCP minus CV delta T? Can I say so? Can I say so? हेलो. लेकिन यहां पर मेरे पास ना तो Cp है ना तो Cv है, कुछ भी नहीं है, बराबर है क्या? I don't have anything. So what I'll do here is I will divide on either side by what I know. Q पता है ना, so I'll divide this by Q and I'll divide this also by Q. But what is Q is equal to? Q is equal to N Cp delta T. Can I say so? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो यहां पर जाके अटक जाते हैं. समझ में आ गई बात? कैन आई कैंसिल N? कैन आई कैंसिल डेल्टा T? कैन आई डिवाइड बाय Cp? It's 1 and this is 1 upon gamma. Can I say so? W, what is W? To calculate. And what is Q? Q is 100 joule.
समझ में आ गई बात? And gamma is also given there. Gamma they have given it as 1.4. Can I say so? तो क्या बनेगा ये बताइए? Therefore this will give me W is equal to 100 into 1 minus 1 upon 1.4. मतलब कितना आएगा जी? 100 into 1.4 minus 1 is 0.4 and 0.4 upon 1.4. That will be equal to what? 100 into 2 by 7. That is 207. So what is W is equal to? 7 14 60 7 56 4 28.55 Joule. Is it matching with the given answer? 555. Yes, it is. मुझे लगता है क्या है ना? It's a star. क्योंकि इसका अप्रोच थोड़ा अलग टाइप का है एंड दिस इज द स्टार स्टेप जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है डिवाइडेड बाय क्यू. समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Please read the question. Let us proceed further. What amount of heat must be supplied? Question number 20. मुझे लगता है ये भी स्टार होगा, आप बताइए है तो. What amount of heat must be supplied to 35 gram of oxygen? This is mass of oxygen and it is given in gram. So it is convenient to convert this into the number of moles. It's an oxygen. Oxygen का molecular weight कितना होता है? Correct. 32. सही बताया आपने. Isn't very good. So number of moles I can say this is 35. बराबर है क्या? Number of moles is mass upon molecular mass. Mass has to be expressed in grams, so this will become 35 upon 32. This many number of moles are there. At room temperature, to raise its temperature by 80 degrees Celsius, rise in temperature delta T is 80 degrees Celsius. Kelvin में भी वही होगा, डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा. At constant volume CV. Okay, what amount of heat is required? So it will be Q is equal to NCV delta T. समझ में आ गई बात? NCV delta T. Now इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I would say here that oxygen is a diatomic gas. तो diatomic gas के लिए CV का वैल्यू कितना होता है जी? करेक्ट. हाँ, डायटोमिक गैस के लिए CV का वैल्यू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5/2R. 5/2R. CP का 7/2R होता है एंड ग्यामा का 7/5 होता है. प्लीज ठीक है. और यहां पर मुझे CV की जरूरत पड़ेगी. R तो ऑलरेडी नोन टू मी एंड दिस R इज गिवन इन मोल कैलकुलेशन, तो इसलिए मुझे मास ना लेते हुए यहाँ पर मोल ही लेने पड़ेंगे और ये है उसके नंबर ऑफ मोल्स. तो वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर. सो व्हाट विल बी Q इज इक्वल टू N is equal to 35 upon 32. These are the number of moles. I hope clear. CV is equal to 5/2R. मतलब this is 5/2 into R is 8.3. I hope it is clear. Okay. Into delta T is 80 degrees Celsius. Well, that's so easy. So it will be 8 ones are 8 fours are. Correct है? Isn't it? So अब मुझे क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर 35 into 5 into 35 into 5 into 83 divided by 8 divided by 8. सही है ना? तो कैन आई अप्रोक्सीमेट दिस? नहीं यार, आंसर्स आर वेरी क्लोज, तो मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकता. 1.5 1.8 1.6 इतने अप्रोक्सीमेशन क्लोज है. तो आई थिंक इट्स बेटर आई विल मल्टीप्लाई दिस. तो मैं 83 इंटू 35 का मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ पहले. कितना आएगा ये? 5 15 एक 8 5 40 आणि 1 41 3 3 9 8 24 6 5 9 1 10 4 4 8 1 9 2905. तो आई डिड दिस मल्टीप्लीकेशन इंटू 5 कर लेते हैं. तो 50 50 25 9 5 45 5 4 5 9 14 and divided by 8. So this will be 8 2 16 किती होईल रे? 8 1 जा
6 बचा 65, आठ आठ 1 बचा 12, 8 वन जा 4 बचा, 8 अपन से 40, 550, 1815.6 जूल, or it is 1.815 kilojoule. So what is the answer here? C is the answer. स्टार तो नहीं है, इजी है ये. दिस वाज इजी है ना? ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. Heat is supplied to diatomic gas at constant pressure. It's a diatomic gas and it is constant pressure. The ratio of delta Q is to delta U is to delta W is. Very nice question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Well, let me make it a star. मैं पहले ही बता देता हूँ ये स्टार क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए व्हाट इज CV का वैल्यू जी? व्हाट इज CV का वैल्यू? करेक्ट, 5/2R. And what is CP का वैल्यू? 5/2R plus R. वेरी गुड, 7/2R. एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब मुझे बताइए व्हाट इज डेल्टा क्यू. मुझे डेल्टा क्यू चाहिए. हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इट विल बी नथिंग बट एन CP डेल्टा T. सही है. और ये बताइए मुझे डेल्टा यू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी तक हमने 3-4 बार आज ही के लेक्चर में देखा है. इट बी एन CV डेल्टा T, इजंट इट? और अब मुझे चाहिए डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू बोलिए या डब्ल्यू बोलिएगा. इसके लिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करूंगा. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? हाँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ फर्स्ट लॉ बोलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. सो डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू बोलिए या डी डब्ल्यू बोलिएगा, इट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इधर ये तीनों चीजें मुझे प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करनी है वन बाय वन. तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स n, CP का वैल्यू 7/2R इंटू डेल्टा का वैल्यू डेल्टा T. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स n. CV का वैल्यू है 5/2R. सही बात है. इंटू डेल्टा T. और यहां पर मुझे डेल्टा W कैलकुलेट करना है विच इज कैसे करेंगे? देखिए, इट इज NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T. तो इसमें इट इज नथिंग बट n टाइम्स CP माइनस CV इंटू डेल्टा T. बट CP माइनस CV मेयर्स रिलेशन, इट इज NR डेल्टा T. ये समझा ना रे? CP माइनस CV इज R. तो अब अगर मुझे दिस इज टू दिस चाहिए तो क्या बन जाएगा? व्हाट डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W इज गिवन बाय. जो कॉमन चीज है उसको हटा दीजिए ना. वॉट एवर इज कॉमन वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. तो जो कॉमन है इसमें N R और डेल्टा T कॉमन है. N R डेल्टा T कॉमन है. N R डेल्टा T कॉमन है. सब गया. तो क्या बचा जी यहाँ पे? दिस इज 7/2 इज टू 5/2 इज टू 1. या तो फिर अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 1, so what is this going to be? This is 7 is to 5 is to 2. So what is the correct answer there? B is the correct answer. And I think this calls for a, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2. मैंने 1 बोला क्या? मल्टीप्लाई बाय 2. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज इट अ स्टार? डिफिकल्ट तो नहीं है? हाँ ओके. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट सो फार? ओके. The specific heat of air, question number 22. The specific heat of air at constant volume is, so this is CV का value, कैलोरी में दिया है. Okay. The change in the internal energy when 5 gram of air is heated. What is the mass of the air there? 5 gram of air is heated from 0 to 4 degrees Celsius. Delta T
इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस एंड CV का वैल्यू दिया है, बट दिस CV का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 1.172 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये मास बेसिस पे दिया हुआ है। अगर मोल बेसिस पे होता तो वो अगर मोल बेसिस पे होता तो वो कैपिटल C होता, मोलर स्पेसिफिक हीट होता, इजंट इट? अब बताइए कैसे करना है। दे से दैट इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसलिए डेल्टा Q या Q जो भी होगा, Q इज इक्वल टू इट विल बी M CV डेल्टा T, ऐसा होगा ना, बिकॉज दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए कौन सा स्पेसिफिक हीट यूज किया जाएगा? CV वाला। समझ में आ गई बात? सो आई विल से हियर Q इज इक्वल टू M CV डेल्टा T। चलिए, मास भी ग्राम में दिया है और ये भी ग्राम में दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर है क्या? इसके अगर हम लिखेंगे, दिस मास इज 5 ग्राम इंटू CV का वैल्यू है 0.172, दिस इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा T इज 4, दिस इज डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम ग्राम डिग्री सेल्सियस कैंसिल, सो जो भी आंसर आएगा वो किस में आने वाला है? मेरा कैलोरी में। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन जूल में दिए हैं, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द कनेक्शन फॉर्मूला बिटवीन जूल टू कैलोरी, जो आपको 9वीं या 10वीं कक्षा में था। मैं जब तक कैलकुलेशंस कर लूँ, आप रिकॉल करके मुझे बताइएगा प्लीज। So let me do that. 5 for the 20. So this will become 1.72 into 2. That will be 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 15, 1 2 3. 3.54. This is joule. Sorry, this is calorie. Now I have to convert this into joule. कैसे? अच्छा, specific heat of water क्या है? What is the specific heat of water? 4200 है ना वो, जूल पर kg केल्विन। ये था ना अभी अभी मैंने आज पहले, और यही नंबर आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर द सेम नंबर, द सेम इज द नंबर दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू, यस, 4.2 जूल। सेम नंबर आपको याद रखना है। इसको अलग तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि भाई 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। याद रखना है आपको ये कन्वर्जन फैक्टर। जो जो अलग चीज है वो मैं यहाँ पर बॉक्स में डालकर आपको दे रहा हूँ। सो हाउ डू आई कन्वर्ट दिस कैलोरी इनटू जूल, प्लीज बताइए। दिस इज नथिंग बट 3.54 इंटू 4.2, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू जूल। तो लेट अस डू दैट नाउ। 354 इंटू 42 कितना होगा जी? ये चौक 8 8 प्लस 14 16 14 so this is 8 6 7 5 14. I have to give decimal after 3 digits, na? 14.868 14.868. So which is the nearest answer here? B is the answer. Is this clear to you all? समझ में आ गया? पता नहीं इसको स्टार बोलो या हाफ स्टार, बाकी सब इजी है, सिर्फ इस चीज के लिए वो स्टार है, तो इसको मैं हाफ स्टार बोल देता हूँ। क्या ना, इज हाफ स्टार, यस और नो? आपके लिए यहाँ पर जरूरी क्या है पता होना, दिस कन्वर्जन फैक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है जी यहाँ पे? इफ R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, if R is a universal gas constant, the amount of heat needed to raise the temperature of 2 mole of an ideal monoatomic gas, 2 moles and monoatomic gas, so N is equal to 2, monoatomic gas है, from 273 to 373 Kelvin, मतलब what is the rise in the temperature? Final temperature minus initial temperature, that is equal to 100 डिग्री सेल्सियस लिखिए, केल्विन लिखिए, दिस इज द डिफरेंस। when no work is done, no work is done,
नो वर्क इज डन कब होता है जी? नो वर्क डन, नो वर्क डन मीन्स व्हाट? वर्क डन क्या होता है जी? वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी ना, पी डेल्टा वी। तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब डेल्टा वी जीरो होगा, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम जीरो होगा, मतलब दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इजंट इट? सो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा मतलब वर्क डन। अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दूं, Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मुझे, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी लिख सकता हूँ कि भाई डेल्टा U प्लस W, लेकिन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द हीट सप्लाइड ना, isn't it? Amount of heat needed. So I will say constant volume है तो it will be nothing but NCV delta T. Directly use करूँगा. I'll not complicate by going through this. This is okay? Did you understand that? Isn't it? No work is done मतलब it is constant volume. समझे? Number of moles 2 into 23. यहाँ पर अपने को कुछ दिया है क्या? CV का वैल्यू दिया है या दिया है? यहाँ पे कौन सा मोनोएटॉमिक गैस है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस व्हाट इज CV इज इक्वल टू 3/2R. So let me substitute here. This will become 3/2R and delta T is 100. समझ में आ गया? This gets cancelled. So what is the final answer there? 300R. Any doubts? So C is the answer. Easy था ना ये? easy. थोड़ा ट्रिकी था लेकिन फिर भी इजी था, लिटिल ट्रिकी कि भाई ऐसा है, वर्क डन नहीं है। प्रोसीड। अगला क्वेश्चन जाता है क्वेश्चन नंबर 24, विच इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं पता है आपको? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। तो इनको छोड़ के जो भी कुछ है, कौन सा है ये? गैस कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसे दो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन डैश डैश, विच डिपेंड अपॉन डैश डैश, विच, एक मिनट, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, do not depend upon dash dash, depend upon dash dash, and extensive properties are the ones which depend upon dash dash dash, depend upon dash dash, fill in the blanks, depend upon dash dash। वो क्या है dash dash? साइज ऑफ द सिस्टम, साइज बोलिए या फिर मास ऑफ द सिस्टम, साइज और मास ऑफ द सिस्टम, they depend upon, they depend upon size or mass of the system, and these do not depend upon size और मास ऑफ द सिस्टम। अब आप बताइए कौन से प्रॉपर्टीज है? साइज के हिसाब से, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, लेकिन साइज बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा कांच ले लो बड़ा कांच ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, isn't it? So which is the intensive property here? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बाकी जो भी कुछ है वो क्या है? एक्सटेंसिव। We have talked about these properties yesterday if you remember. अगर आपको याद है तो कल मैंने इसके बारे में बात करी है। We have talked about this. Let me show you here intensive and extensive properties. Mechanical equilibrium. ये देखिए यहाँ पे मिल गया, ये रहा intensive and extensive properties. Intensive do not depend on size of the system, extensive depend on the size of the system. एग्जाम्पल दिया था
इंटेंसिव का एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और एक्सटेंसिव मास, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। जितना अमाउंट, जितना गैस ज्यादा होगा उतना उसका इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा ना, isn't it? Is that okay? Shall I proceed? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। Let's begin. Now here, before I go for this, यहाँ पे let me explain you something here कि यहाँ पर एक चीज अपने को याद रखनी है कि दोनों प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर टू प्रोसेसेस, एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, और दूसरा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। दोनों भी प्रोसेसेस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पे ग्राफिकली तो वैसे ही होगा, मतलब द नेचर ऑफ द ग्राफ इज ऑफ द सेम टाइप। ग्राफ का नेचर दोनों का भी सेम टाइप का ही होगा, बस दोनों में कुछ फर्क होगा। वेल, क्या फर्क होगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्क ये होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें आई वुड से दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये रहा, एंड दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इन टर्म्स ऑफ द स्लोप, अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं यहां पे, इफ आई ड्रॉ द स्लोप टू दिस, इसका स्लोप ऐसे होगा और इसका स्लोप ऐसे होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप मतलब खड़ा होता है ज्यादा वो। Are you understanding what I'm saying there? So what I would say here, that the slope of adiabatic process is always greater than the slope of isothermal process. ये हमने इसमें नहीं देखा, कार्नोट साइकिल में आगे जाके देखने वाले हैं ये, ठीक है। सो दोनों में से जो ज्यादा स्टैंडिंग होता है, स्टीप होता है, वो कौन होगा? एडियाबैटिक, और जो एकदम हॉरिजॉन्टल के नजदीक होता है वो आइसोथर्मल। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी की तरह अपने को याद रखना है यहाँ पे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द गिवन पीवी डायग्राम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज शोन। यहाँ पर गैस एक्सपैंड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा? ए इज आइसोथर्मल, बी इज एडियाबैटिक, यही ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं, अब हम और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर ऑफ ग्राफिकल नेचर, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक वही लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए आइसोथर्मल, ये सब के सब आइसोथर्मल प्रोसेस है। द आइसोथर्मल डायग्राम ऑफ गैस ऑफ 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2, T3 इज गिवन। ये सब के सब आइसोथर्मल, पीवी डायग्राम पर ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस डिनोट किए गए हैं। तो अब यहां पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आइसोथर्मल में इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। सो इन दिस, जैसे हम इस तरफ चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? तो इसमें कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है? T1 इज द मैक्सिमम, T3 इज द लीस्ट। T1 is maximum, T3 is least. So C is the correct answer. Is this okay? समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या है? चलिए, so let's continue. Question number 35. Question number 35. Don't search. Don't at all search. इधर ही देख लो, डायरेक्ट दिख रहा है, देखो, ठीक है। क्योंकि मैंने उससे बाहर कुछ लिया ही नहीं, उसी में से लिया है ना, तो आपको मिलना ही मिलना है वो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है यहाँ पे? इट सेज Which of the following PV diagram represents the graph of isometric process? अब हमने आइसोकोरिक देखा, आइसोबारिक देखा, आइसोथर्मल देखा, आइसोमेट्रिक क्या होता है भाई? मेट्रिक, मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेट्रिक, मेट्रिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। आइसोमेट्रिक मतलब, आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होगा जी?
What is meant by isometric process? It is constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसका मतलब है प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT. अगर ये इक्वेशन है, इसमें अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बन जाएगा तो हाउ इज दिस गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड? सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस और नो? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके. अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ y इज इक्वल टू mx. ऐसा जब इक्वेशन होता है लाइन का तो दैट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन. यस और नो? इजंट इट? तो यहां पर प्रेशर टेम्परेचर का ऐसा वाला ग्राफ इधर है. किधर है? ये रहा. सी, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. y इज इक्वल टू mx टाइप का होगा ना फिर ये. हेलो. डायरेक्ट अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा. सो इट इज दिस ग्राफ. अंडरस्टूड? कंफ्यूज होएगा? समझ में आ गया? मैंने आपको y इज इक्वल टू mx के साथ वो फटाक से कनेक्ट करवा दिया. इज दैट क्लियर? ओके. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40. क्या दिया है यहाँ पे? 1 mole of an ideal gas, 1 mole n is equal to 1. An ideal gas goes from initial state A, ग्राफ दिया है यहाँ पे, डायग्राम दिया है देखिए. Initial state A to final state B via two processes. From initial state A to B, A to B, A to B, चार ऑप्शन दिए हैं. By two processes. पहला प्रोसेस है इट फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. एक्सपांशन. कल हमने एक्सपांशन में क्या होता है वो देखा है. एक्सपांशन में क्या होता है? व्हेन द गैस इज एक्सपैंडिंग. एक्सपांशन में उसका प्रेशर जो होता है वो कम होता है. बराबर है क्या? एंड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो. एक्सपांशन के लिए कल हमने देखा था कि एक्सपांशन अगर होता है मेरा किसी गैस का अगर एक्सपांशन होता है तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कैसे होगा रे? अगर ऐसा है प्रोसेस तो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाता है या 1 से लेकर 2 तक जाता है. इफ इट इज एक्सपेंडिंग तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए. यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है. समझ में आ रहा है? इजंट इट? एंड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ना चाहिए. सो दिस इज स्टेट 1 एंड स्टेट 2. तो यहाँ का वॉल्यूम कम है, यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है. सो जब गैस इस तरफ ऐसा जाता है इट इज एक्सपांशन. और वही गैस अगर यहां से उस तरफ ऐसा जाता है फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट, इधर से इधर जाएगा तो वो कंप्रेशन कहलाएगा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और एक्सपांशन मतलब इस तरफ अगर जाएगा तो एक्सपांशन कहलाएगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर वो इस तरफ जाता है तो एक्सपांशन होता है, उल्टा जाएगा तो कंप्रेशन होगा. पीवी डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? कमिंग बैक टू हियर, यहां पर उन्होंने बताया है इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम V टू 3V, V से लेकर 3V तक. अब देखिए ये एक्सपांशन है. एक्सपांशन मतलब इस तरफ जाने वाला है. सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. ये आउट ऑफ क्वेश्चन है. यू नो व्हाई? क्योंकि वो कंप्रेशन दिखाया है. अब आइसोथर्मल है तो इस कर्व आएगा, यहां पर स्ट्रेट दिखाया है. सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. समझ में आ गया? अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा क्योंकि ये पहला वाला प्रोसेस जो दिया है एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V टू 3V, यहाँ का वॉल्यूम 3V है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. समझ में आ रहा है? तो पहला वाला इन दोनों में से कोई एक आंसर है. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. एंड इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर. बाद में उसका वॉल्यूम 3V से V बना दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर. क्या कांस्टेंट प्रेशर मतलब वो इस तरफ ऐसा जाना चाहिए ना रे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? अगर वो कांस्टेंट प्रेशर है तो इट हैज टू द प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सो वो यहां से यहां तक जाना चाहिए. सो इट इज दिस प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर जा रहा है. फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पे प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. इज दैट अंडरस्टूड? हेलो. सो व्हाट इज द आंसर हियर? यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से इधर ये है कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर.
and that is why this is the answer. इसका बाकी कोई explanation नहीं, this is the explanation here. Is that clear? Hello, hello, hello. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Question number 44. Question number 44. The cycle in the figure. The cycle in the figure followed an engine made of an ideal gas in the cylinder with a piston and the heat exchanged by the engine with the surroundings for adiabatic section A to B. यहाँ से यहाँ पर वो adiabatic section है उसका. This is adiabatic expansion. Adiabatic section A to B of the cycle is CV is equal to this. क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? कैसे करेंगे? यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हीट एक्सचेंज. नो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट एक्सचेंज. हीट एक्सचेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है रे? एडियाबैटिक प्रोसेस को एडियाबैटिक कब बोलते हैं? प्रोसेस इज एडियाबैटिक व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज. अरे नो ट्रांसफर ऑफ हीट, एडियाबैटिक प्रोसेस. सही है ना? सो नो ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब Q इज इक्वल टू 0 ना. डेल्टा Q बोलो या Q इज इक्वल टू 0 एंड द आंसर इज डी. आप लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो वर्क डन का था रे बाबा. ये हीट एक्सचेंज 0 होता है इधर. वर्क डन इज दिस. अंडरस्टूड? इज दिस ओके? समझ में आया? सो द आंसर इज 0 हियर. अगला क्वेश्चन 45. The initial state of a certain gas. The initial state of a certain gas is P1, V1, T1. Okay. P1, V1 and temperature is T1. It undergoes expansion till its volume becomes V final. This is Pi, Vi, Ti and V final Vf at constant temperature. It undergoes constant temperature मतलब isothermal expansion गया है यहाँ पे. क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब हमें पता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पैटर्न किस तरह का होता है. अभी अभी हमने देखा कैसा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पैटर्न. कर्व, ऐसा वाला कर्व, डाउनवर्ड वाला गोइंग. करेक्ट ना? तो विच इज द करेक्ट आंसर? ए. इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? कंप्रेशन होता है तो ऊपर की तरफ जाता है. और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का दोनों कर्व का नेचर होता है. लेकिन किसका स्लोप ज्यादा होता है? अभी अभी बताया मैंने आपको. किसका स्लोप ज्यादा होता है? ये रहा. एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है. ज्यादा स्टैंडिंग वाला होता है एडियाबैटिक और स्लीपिंग के नजदीक होता है आइसोथर्मल. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट ओके? ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. चलिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए. लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 29 नाउ. 29 से आगे बढ़ते हैं. The possibility of increase in the temperature of gas without adding heat to it happens in no addition of heat. Yes. No addition of, without adding the heat. Without adding the heat मतलब delta Q is equal to 0. Or Q is equal to 0 for that sake. Now what is first law of thermodynamics? Q is equal to delta U प्लस W. बराबर है. अब डेल्टा Q अगर 0 है तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. करेक्ट है. देयरफॉर ये W इधर जाके माइनस बनेगा. सो व्हाट इज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W. माइनस W का मतलब क्या होता है? वर्क इज माइनस कब? व्हेन इट इज कंप्रेशन. साइन कन्वेंशन याद करिए. heat added plus heat given out minus work of expansion positive, work of compression negative. So this is necessarily अगर minus है तो it's a compression. It's a compression. अच्छा, और इसमें heat exchange नहीं है. When there is no heat exchange, adiabatic. So it is adiabatic compression. Is this clear to you all? This is adiabatic compression. So what is the answer there? C is the answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था. Is that understood? Is this clear?
ऑलराइट, प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. हेलो, हेलो, आवाज येतोय माझा? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो. आगे बढ़ते हैं, चलिए. प्रोसीड. ओके, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 30. हाँ, दिस वन. द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस. बहुत डिफिकल्ट है, फोकस करो, आंसर आ जाएगा. अडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखा, फोकस करने के बाद आंसर आता है. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. इफ एन आइडियल गैस अंडरगोज isothermal process from initial state I to final state F, then the change in the internal energy during this process. change in the internal energy क्या होगा जी? आइसोथर्मल, अभी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. डेल्टा टी बोले तो चेंज इन द टेम्परेचर. तो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है. तो आंसर क्या आएगा? जीरो इंटू एनीथिंग इज, सो व्हाट इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? अच्छा, डेल्टा यू को कभी कभी प्यार से ऐसा भी लिखते हैं, डी यू. ठीक है, सो व्हाट इज आंसर देयर? सी. यू सी? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो डाउट्स. सही है. आगे बढ़ते हैं. द रिलेशन बिटवीन, हाँ ये बढ़िया है, इसको मैं स्टार बोलेंगा. रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व टू स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज. अभी थोड़ी देर पहले हमने तो देखा कि भाई स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, लेकिन यहां पर इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं पूछा उन्होंने, डायरेक्ट रिलेशन ही पूछा है. दे आर आस्किंग द रिलेशन ओवर देयर. सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर देयर. इसके लिए अब मुझे इसको प्रूव करना है भाई. आई नो दैट पीवी इज इक्वल टू, दो प्रोसेसेस है ना. फर्स्ट आई टॉक अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस. आई टॉक अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो टी इज अ कांस्टेंट. यस और नो? इजंट इट? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. अब इसका डिफरेंशिएट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बट आई विल कैंसल दैट टाइम का डिफरेंशियल, तो उसको लिखते हैं, हम उसको बोलते हैं राइटिंग इन द डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर मैं यूवी रूल अप्लाई करूंगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, समझ में आ गया? प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, समझ में आ गया? इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव जीरो होगा. तो दिस इज द डेरिवेटिव. लेकिन इसी चीज को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, राइटिंग इन द डिफरेंशियल फॉर्म, मैथ्स में लास्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके कुछ बेसिक मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ. राइटिंग इट इन द डिफरेंशियल फॉर्म, इफ आई राइट दिस इन द डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में ये जो dt है इसको कॉमन लेके उसको उधर भेज देते हैं, तो जो फॉर्म आएगा उसको कहा जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म. तो व्हाट विल बी द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस? दिस इज नथिंग बट p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशियल में कर सकते हैं. समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है. सो यहाँ पे ये अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा? p इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी. सो यहाँ पर मुझे what will be dp upon dv is equal to minus p upon v. I'll call this as equation 1. ये होगा slope of PV diagram. This is nothing but slope of PV diagram. जो dy by dx बोलते हैं ना, तो y axis पर p होगा, x axis पर. So this is the slope of PV diagram. Is this understood? This I have found out for isothermal.
आइसोथर्मल के लिए मैंने फाइंड आउट कर लिया है. लेट मी फाइंड आउट द सेम थिंग फॉर एडियाबैटिक कर्व. एडियाबैटिक कर्व के लिए अगर हम यही चीज फाइंड आउट कर लेंगे तो व्हाट इज एडियाबैटिक कर्व के लिए क्या होता है बताइए मुझे. फॉर एडियाबैटिक कर्व पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सही है कि नहीं है? बताइए भाई, सही है कि नहीं है? अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी क्या मिलेगा बताइए. अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दिस इज ब्रैकेट रेज टू गामा, so this is gamma times bracket raised to gamma minus 1 into d by dt of bracket plus second function as it is और p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, it will be dp by dt is equal to 0. Did you understand this? Did you understand this? अगर मैं ये इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा बताइए. This will become p gamma v raised to gamma minus 1 into dv by dt is equal to minus v gamma dp by dt. ये dt dt कैंसिल, जो डिफरेंशियल फॉर्म में मिल जाएगा अपने को. इज दैट अंडरस्टूड? तो अब मुझे इस dv को इधर लेके आना है एंड ये जो है उसको उधर लेके आना है. सो दिस विल गिव मी dp by dv इज इक्वल टू क्या आएगा जी? दिस विल बिकम p gamma v रेज टू gamma minus 1 अपॉन ये माइनस इधर आएगा v रेज टू गामा. समझ में आ गई बात? समझे? अच्छा, v रेज टू गामा एंड v रेज टू गामा माइनस 1 क्या बचेगा इसमें से? इफ आई से x रेज टू 7 एंड x रेज टू 8 तो क्या बचता है? हाँ, तो दिस इज v रेज टू गामा एंड v रेज टू गामा माइनस 1, इसमें से क्या बचेगा? वन अपॉन गामा, वन अपॉन v रे, बराबर है ना? वन अपॉन v गामा नहीं, ओनली v. अरे x रेज टू 7 और x रेज टू 8 बराबर है क्या? कैन आई राइट दिस एज x रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ये समझा ना रे, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करो ना रे, तो ये मिल जाएगा. व्हाट यू गेट देयर? दिस विल गिव मी, बोलिए व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p गामा एंड ये है लॉज ऑफ इंडाइसिस v रेज टू गामा माइनस गामा माइनस 1, तो गामा गामा कैंसिल प्लस 1 बचेगा. सो व्हाट आर यू गेटिंग देयर बाय द वे? दिस इज गोइंग टू गिव मी dp बाय dv is equal to minus gamma times p upon v. This is the slope of adiabatic curve. Slope of adiabatic curve. ये आपको याद रखना पड़ेगा, या इक्वेशन के फॉर्मूले के तौर पर भी ले सकते हैं. एंड दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. बराबर है क्या? तो दोनों का रेशियो ले लीजिएगा. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ बोथ, देयरफॉर m फॉर आइसोथर्मल कर्व क्या है? माइनस पी अपॉन वी. तो यहां पर माइनस पी अपॉन वी है, रेडीली अवेलेबल है ना? देखिए ना, माइनस पी अपॉन वी इज रेडीली अवेलेबल हियर. So if I substitute, what am I going to get there? Slope of adiabatic curve is gamma times slope of isothermal curve. समझ में आ गई बात? Is that understood? Isn't it? So we get here, which is the answer there? Question number 33. The answer is A. Slope of adiabatic curve is gamma times C. हमने पहले ही देखा था कि ज्यादा होता है. कितने से ज्यादा होता है? gamma times. Is that okay? नया है ये, आपको HSC में नहीं था ये. जैसे मैंने एनसीईआरटी के अंदर आ गया ये. समझ में आ रहा? ऑलराइट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है जी? कंसीडर क्वेश्चन नंबर 34. कंसीडर अ साइकिल फॉलोड बाय एन इंजन एज शोन इन द फिगर. ये साइकिल है. 1 to 2 is isothermal process. ये this is isothermal. 1 to 2 is isothermal process. समझ में आ रहा है? 2 to 3 is adiabatic. हाँ, इसका स्लोप भी ज्यादा है. So this process is adiabatic. Okay.
and 3 to 1 is again adiabatic. 3 to 1 is again adiabatic. Okay, now there are some things, few properties here which I would like to add. एक ऐसा होता है कि दो सेम टाइप के प्रोसेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते. ओके, सो व्हाट आई से हियर कि भाई टू सेम प्रोसेसेस never intersect each other. यहां पर अडायाबैटिक के बाद दूसरा अडायाबैटिक और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे. दिस इज वार्निंग. ऐसा कभी नहीं होता है. समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये प्रोसेस विल नॉट एग्जिस्ट. दिस प्रोसेस विल नेवर एग्जिस्ट. इस वजह से ये प्रोसेस हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अब देखिए, वन मोर थिंग इज देयर. यहां पर प्रोसेस शुरू हो गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया और इधर से वापस इधर आ गया. सो द सिस्टम हैज कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, isn't it? Final and initial position is same, state is same. So अगर ऐसा है 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से दोबारा 1 पर आता है, तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल. ये दोबारा उसी पर जगह पर आता है. देयरफॉर इसका इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि वो उसी जगह पर वापस आ गया. ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ना ही उसका टेम्परेचर घट गया. तो उसका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो. अगर इंटरनल एनर्जी इज जीरो, देन व्हाट हैपेंस टू द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि भाई अगर ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया, तो टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, विच इज नेवर पॉसिबल. इन फैक्ट यही है तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, विच वी हैव नॉट स्टडीड yet. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि इट इज नेवर पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क. पूरा का पूरा हीट कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ लॉस. इसका मतलब है नथिंग इन द वर्ल्ड इज 100% एफिशिएंट. किसी भी मशीन का 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल. इट विल बी एन आइडियल केस, इट विल बी अ हाइपोथेटिकल केस. ऐसा नथिंग, हम ऐसे बोलते हैं नोबडी इज परफेक्ट, वैसे नो मशीन इज परफेक्ट, नो मशीन इज 100% एफिशिएंट. अगर कोई 100% एफिशिएंट मशीन होता है तो हम उसको आइडियल मशीन मानते हैं. वो ऐसा होता नहीं है, जग में ऐसा कुछ भी नहीं है. नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज आइडियल. सो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, आगे जाके हम देखने वाले हैं. सो इसलिए ये प्रोसेस कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, और उसका रीजन यहाँ पर ए इज द आंसर. हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन सच प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल. दैट इज द आंसर हियर. ओके, क्या हो गया? कर्व्स रिप्रेजेंटिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस कैन इंटरसेक्ट. नहीं, दे कैन नॉट, दे डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन. कांट होना चाहिए, कांट होता तो हो जाता. इज दैट क्लियर? सो सी इज नॉट द आंसर हियर. इज दिस ओके? समझ में आ गया? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था. इट वाज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसको मैं हाफ स्टार दे देता हूं. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36. A gas is expanded. A gas is expanded from V0 to 2 times V0 under 3 different processes as shown in the figure. Process 1 is isobaric process. देखिए यहाँ पे isobaric, isobaric मतलब क्या होता है जी? प्रेशर कांस्टेंट. इधर देखिए ना, यहाँ पर उसका प्रेशर इधर जा रहा है, तो प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सो दिस इज isobaric. This is isobaric process. Process 2 is isothermal. हाँ दिख रहा है वो. Process 2 is isothermal process. And process 3 is adiabatic process. Process 3 is adiabatic. Adiabatic process. ठीक है? Okay.
let delta U1, delta U2 and delta U3 be the change in the internal energy of the gas in these three processes. तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, स्टार प्रॉब्लम है. We have to find out कि भाई किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और किसका कम है. So let us talk one by one, एक एक करके बात करेंगे. First I'll talk about the पहला process which is isobaric प्रोसेस. तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बन जाएगा जी? अगर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और एनआर तो कांस्टेंट है. सो आई विल से वी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यस और नो? हेलो हेलो. Volume is directly proportional to temperature, isn't it? Therefore, अगर यहां पर एक्सपांशन हुआ है मतलब पहला वॉल्यूम V0 था, वो बढ़ के क्या हो जाएगा 2 टाइम V0. So there is increase in the volume and therefore delta T जो है, because there is increase in the temperature also, they are directly proportional ना here. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. यस और नो? सो डेल्टा टी जो है ये पॉजिटिव है. यस और नो? डेल्टा टी इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर अगर बिकॉज वी नो दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो ये डेल्टा यू है ये भी पॉजिटिव है. यस और नो? This is positive. So I would say delta U1 in this case is greater than 0. पहला वाला एनालिसिस हो गया. मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो बात कर रहा हूँ. दूसरा कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे जी? द सेकेंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. वेल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है जी? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस और नो? मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. यस और नो? मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी ही 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0. यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब हम बात करेंगे तीसरे प्रोसेस की. द थर्ड प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस. वी वांट टू टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस. वेल एडियाबैटिक प्रोसेस में delta Q is equal to 0. Heat exchange is not allowed. Isn't it? तो यहां पे हम ये बात करेंगे कि भाई Q is equal to by using the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या बोलता है? Q is equal to delta U plus W. लेकिन Q is 0. So what is delta U is equal to minus W. Yes or no? डेल्टा U is equal to minus W. So we can say here कि भाई पहले केस में डेल्टा U पॉजिटिव है, दूसरे केस में डेल्टा U 0 है और तीसरे केस में डेल्टा U is निगेटिव लेस देन 0 है क्योंकि वो निगेटिव है. यस और नो? अब कौन ज्यादा है कौन कम है देखिए यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये निगेटिव है. तो हाउ विल यू राइट दिस? कम ऑन, यू विल से दैट डेल्टा U1 is greater than delta U2 is greater than delta U3. Is this okay? So delta U1 greater than A is the answer and it's a star problem for sure. Is this okay? Okay. Question number 37. It is the same question as kinetic theory of gases, page number 31, HOTS. हमने solve किया है ये. It is same question. तो इसको मैं solve नहीं करूँगा. बिल्कुल same question है. Is that okay? I'll go for the next question. Question number 38. लास्ट क्वेश्चन खत्म कर लूं.